Assalamu alaikum. Welcome everyone. I am Muzaffar Bashir Khan. Today the topic under discussion is internal energy using kinetic molecular theory of gases (KMT). We will discuss internal energy of gases using kinetic molecular theory of gases. So first of all, I will define what is internal energy. Sum of all types of kinetic energy and potential energy of all the molecules of a substance is called internal energy. It's a basic definition of internal energy, but according to kinetic molecular theory of gases, molecules of ideal gas have only kinetic energy and they have no potential energy. So, according to kinetic molecular theory of gases, internal energy is defined as sum of kinetic energy of all the molecules of a substance or of a gas. In kinetic molecular theory, potential energy is not considered. So, only kinetic energy is taken into account to find out internal energy of a gas. As we have discussed in the previous lecture of thermodynamics, that average kinetic energy of 1 mole of an ideal gas is half mv square average. This capital M is symbol used for mass of 1 mole. So half mv square average, that is equal to E internal, that is equal to 3 by 2 RT. 3 by 2 RT, it is average kinetic energy of 1 mole of an ideal gas. As kinetic energy of average kinetic energy is also equal to E internal energy. So internal energy of 1 mole of an ideal gas, it is equal to 3 by 2 RT, where R is here universal gas constant and T is here absolute temperature. Similarly, average kinetic energy of n moles of an ideal gas is, just we will multiply the above expression with n. N is here number of moles. Half n mv square average, that is equal to 3 by 2 nRT. ये आपके पास n मोल of an ideal gas की kinetic energy है. This average kinetic energy is of ideal gas is called internal energy of ideal gas. अब देखिए इन एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. इट डजंट डिपेंड अपॉन प्रेशर और वॉल्यूम or any other factor. It only depends upon temperature. So it's clear from above expression that internal energy depends upon temperature only. Similarly, average kinetic energy of one molecule of an ideal gas is, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्मॉल m हम यूज करते हैं फॉर मैस ऑफ अ वन मॉलिक्यूल एंड कैपिटल M हम यूज करते हैं फॉर मैस ऑफ अ वन मोल. तो इसमें अब हम यहाँ पे आ गए हैं कि आपके पास जो ये वन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो कितनी है. दैट इज हाफ mv स्क्वायर एवरेज, दैट इज इक्वल टू E इंटरनल, दैट इज इक्वल टू 3 by 2 kT. हेयर K इज हेयर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अगर आप यहाँ पे अगर हमारे पास किसी भी गैस के n कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और तमाम मॉलिक्यूल्स की अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहें तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो वी गेट, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज हाफ n mv स्क्वायर एवरेज, दैट इज इक्वल टू 3 by 2 nkT. एंड यहाँ पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, के यहाँ पे एब्सोल्यूट, के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज हियर एब्सोल्यूट टेम्परेचर. क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स में जब भी प्रोसेस हम करते हैं कोई भी, तो जब वर्क करते हैं
तो वर्क करने से गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकती है। सो वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस कैन चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। सो वर्क डन W इज इक्वल टू डेल्टा ई इंटरनल। डेल्टा ई इंटरनल यहाँ पे शो कर रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। व्हेन गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड और व्हेन गैस एक्सपैंड वर्क इज नेगेटिव। इस केस में ये होता है कि फाइनल वॉल्यूम जो होता है ना VF वो लेस होता है, इनिशियल वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू VI। जब गैस एक्सपैंड होगी फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू इनिशियल वॉल्यूम, VF ग्रेटर होगा VI से। सो वर्क इज नेगेटिव। व्हेन वर्क इज नेगेटिव then when gas expand then temperature also decreases. When temperature decreases then delta E internal is also negative. And similarly अगर आप इसकी उलट बात करते हैं तो फिर ये होता है कि when gas is compressed then temperature of the gas increases and work done is also positive. When temperature increases then delta E internal or change in internal energy is also positive. Next is here internal energy of monoatomic gas. Molecule of monoatomic gas has only one atom, and translational kinetic energy of the monoatomic gas. So internal that is equal to here Ke translational. मोनोटॉमिक गैस में एक ही एटम होगा और उसकी जो किनेटिक एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी ही होगी, और वही ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगी। सो ई इंटरनल दैट इज इक्वल टू के ई ट्रांसलेशनल। हेयर ये के ई के साथ जो स्मॉल टी लगा हुआ ये टी ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। सो ई इंटरनल दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जी स्क्वायर। इसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो मोनोएटॉमिक गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, तो वो जो एटम है वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो इंडिपेंडेंटली 3 वेज में मूव कर सकता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जी एक्सिस। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 टर्म लिए हैं, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जी स्क्वायर। This expression shows that molecules of ideal gas can move independently in 3 ways or in 3 directions. These 3 directions are along x-axis, along y-axis, or along z-axis. This independent way or direction in which molecules move is called degrees of freedom. So molecules of ideal gas or monoatomic gas has 3 degrees of freedom. ये 3 डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर सकते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव कर सकते हैं, अलॉन्ग जी एक्सिस मूव कर सकते हैं। तो इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 3 हैं फॉर मोनोटॉमिक गैस। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर इक्विपार्टीशन थ्योरम है, जिसको यूज करके हम लोग एक फाइनल एक्सप्रेशन देंगे फॉर इंटरनल एनर्जी। ये थ्योरम ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्विपार्टीशन थ्योरम इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस is equal to degrees of freedom multiplied by KT by 2। क्योंकि मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी फॉर मोनोटॉमिक गैस दैट इज इक्वल टू 3 into KT by 2। दिस 3 is here degrees of freedom। Similarly total internal energy of n molecules that is equal to 3 n KT by 2। हमने ऊपर वाली इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गई टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स फॉर मोनोटॉमिक गैस। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दैट इज इक्वल टू 3 into RT by 2। दिस 3 is here degrees of freedom and so total internal energy of n moles। अगर हम n मोल्स फाइंड करना चाहेंगे तो n मोल्स के लिए हम इस सेकंड लास्ट इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सो दैट इज इक्वल टू 3 into n RT by 2। This 3 is here degrees of freedom for monoatomic gas। Now is here internal energy of diatomic gas। Diatomic gas में जो मॉलिक्यूल होंगे वो 2 एटम पे कंसिस्ट करेंगे और उनकी जो होगी इंटरनल एनर्जी
वो होगी ड्यू टू रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स and their internal energy is due to rotational and translational kinetic energy. In this case, internal energy E internal, that is equal to Ke rotational plus Ke translational. फर्स्ट टर्म में जो Ke के साथ ROT लिखा हुआ है ये रोटेशनल के लिए है, और सेकंड टर्म में जो Ke के साथ TR लिखा हुआ है ये फॉर ट्रांसलेशनल यूज हो रहा है। E internal that is equal to half IX omega x square। यहाँ पे जो आई एक्स है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मॉलिक्यूल का अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ओमेगा एक्स उनकी एंगुलर वेलोसिटी है। आई इज हियर सिंबल फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज सिंबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, ये हम यूज करें कि रोटेशनल के लिए ये फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें क्योंकि हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी लेंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी लेंगे, अलॉन्ग जी एक्सिस भी लेंगे, तो इनको हमने बाइफर्केट करके ऐसे लिख दिया है हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जी ओमेगा जी स्क्वायर। यहाँ पे थर्ड टर्म आनी चाहिए थी, लेकिन वो हमने यहाँ पे नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि डायटोमिक गैसेज में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लॉन्ग जी एक्सिस मूव करते हैं, तो इसी वजह से उनके लिए आई जी की वैल्यू जीरो होती है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे थर्ड टर्म आई जी वाली स्किप कर दी, वो जीरो होगी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसलेशनल के की वैल्यू लिख दी है हमने हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जी स्क्वायर, वेयर दिस आई इज हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे 5 टर्म्स हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। डायटोमिक गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 5 है। In diatomic gas molecules rotate about z axis, so Ig is equal to 0। जो मैंने पहले बात कर दी कि इसमें जो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी में जो थर्ड टर्म है Ig वाली उसको हमने 0 कर दिया है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल दे रोटेट अलॉन्ग z axis, so Ig is equal to 0। Molecules of diatomic gas has 5 degrees of freedom, so according to equipartition theorem, internal energy of molecule of diatomic gas is E internal is equal to 5 into KT by 2। ये 5 यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो कर रहा है। इसी तरह टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 5 n KT over 2। अगर आप यहाँ पे एक मोल की फाइंड करना चाहेंगे तो सिमिलरली अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फार्मूला मोल वाला, वो होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल दैट इज इक्वल टू 5 into RT by 2। अगर आप यहाँ पे 1 मोल की बजाय n मोल फाइंड करना चाहेंगे तो फिर हम इस लास्ट इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्मॉल n इज यूज फॉर नंबर ऑफ मोल्स एंड कैपिटल N इज यूज फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। The next one is here internal energy of polyatomic gas, that's last one। Molecule of polyatomic gas consists of 3 or more atoms and their internal energy is due to rotational and translational kinetic energy। So E internal is equal to Ke rotational plus Ke translational। उसी तरह जैसे हमने पहले यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है, तो Ke रोटेशनल में आ जाएगा हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जी ओमेगा जी स्क्वायर। और जो लास्ट 3 टर्म्स हैं वो Ke ट्रांसलेशनल के लिए हैं, तो हाफ आई एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जी स्क्वायर। दीज लास्ट 3 टर्म्स आर Ke translational। आई इज हेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस है 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जैसे हमने देखा लास्ट इक्वेशन में 6 टर्म्स हैं, तो इसके अंदर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो यूजिंग इक्विपार्टीशन थ्योरम इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेज E internal is equal to 6 into KT by 2। 6 is here degrees of freedom for polyatomic gas। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स, अगर आप n मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड करना चाहेंगे तो हम इस टर्म को कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू एन के टी ओवर 2। एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, अगर हम मोल के लिए बात करेंगे तो ये हम यूज करेंगे RT by 2। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 RT by 2। 6 इज हेयर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एंड सिमिलरली
total internal energy of n moles that is equal to 6 into nRT/2। ये आपके पास डिफरेंट एक्सप्रेशन आ गया इंटरनल एनर्जी के फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर डायटोमिक एंड फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस। Thank you very much for watching.